Assalamualaikum. बेटा आई हैव नॉट स्टार्टेड. आवाज़ कैसी होगी? आएगी. लेट मी स्टार्ट, फिर आवाज़ आ जाएगी आप तक. आई होप दिस इज ओके नाउ. आवाज़ आ रही है? In the last class, Assalamualaikum. In the last class of Monday, we were discussing about parts of speech. We'll be continuing the same topic with a little bit of recap. हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक छोटा सा रिकैप देने के बाद. आपके पास how many parts of speech are there? We were discussing about there are 8 parts of speech. Beta, keep yourself unmute. आपके पास हम डिस्कस कर. बेटा कीप योरसेल्फ म्यूट प्लीज. वानिया. Beta, check your devices. There might be a problem with your devices. That's why you cannot hear me. From our side, all the things are okay, and the voice is going. I have just checked with the admin. So there might be problem with you people or with your devices. So please check out. Right, we are going to start our lecture with a recap. We were discussing about parts of speech. We just got the idea that there are 8 parts of speech, but with an addition of the 9 parts of speech, which is article, I gave you. Better keep yourself muted. Okay, beta. We are continuing with the same topic, that is parts of speech. In the last class, we had discovered that there are 9 parts of speech with the addition of article. I gave you 3 of the sentences in which in one of them we used a, in other we used an, and the last one we used the. A, an, and the basically are the articles. लेकिन जब हम बात करते हैं, when we speak, when we talk to someone, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ए एन और दा भी यूज कर रहे होते हैं. आई ईट एन एप्पल, एन इज बेसिकली एन आर्टिकल. शी इज अ गर्ल, ए इज एन आर्टिकल. द कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद. then the is coming, a n and the, these are article. लेकिन इन articles को आप speech में use कर रहे होते हैं, या when you speak you use these. So article is also one of the parts of speech in the modern language. हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, हैविंग अ रीकैप ऑफ दैट, देयर आर 5 पार्ट्स, 5 काइंड्स ऑफ नाउन. Number 1, we had
proper noun, second was common noun, third was material noun, the fourth one was the abstract noun, and the last one we had the collective noun. एक छोटा सा recap कर लेते हैं. Proper noun, specific name of a person. किसी भी शख्स का खास नाम, किसी भी चीज का खास नाम, किसी भी जगह का खास नाम, that is proper noun. एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, कराची, हैरल जेकब. Now these are specific names of person or people or places. इनका कॉमन नेम हो सकता है. पाकिस्तान का कॉमन नेम क्या हो सकता है जी? कंट्री. कराची का कॉमन नेम क्या हो सकता है? सिटी. हैरल जेकब का कॉमन नेम क्या हो सकता है? देयर कैन बी टू मेनी कॉमन नेम्स ऑफ हैरल जेकब, लाइक इट कैन बी मैन, इट कैन बी टीचर, इट कैन बी ह्यूमन बीइंग. में आपके पास के सारे जो नाम है वो कॉमनली यूज होते हैं, जो कि प्रॉपरली यूज नहीं होते. उस कॉमनली क्यों यूज होते हैं? क्योंकि अगर आप मैन या टीचर हैरल के लिए बोल रहे हैं तो यू कैन स्पीक द सेम वर्ड फॉर अनदर पर्सन, जो कि उस्मान हो सकते हैं, जो कि सुगरा हो सकती हैं, जो कि आसिफ हो सकते हैं, जो कि यूसुफ हो सकते हैं, वगैरह वगैरह. आप जो लिविंग थिंग, यस ऑफ कोर्स वी कैन से दिस. आपके पास एक और चीज भी की जा सकती है कि आपके पास अगर सिटीज हैं तो कराची इज अ सिटी, the same as the New York is a city, the same as the Delhi is a city, the same as Lahore is a city. It simply means कि आपके पास जो cities हैं, जो शहर हैं, वो आपके पास कॉमन है, लेकिन स्पेसिफिक क्या है उनका? लाहौर, कराची, कोयटा, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह. आपके पास when we talk about country can be, every country is a country, but all the countries have their specific name. Country is a common name, the specific name is proper noun. Like we have got Pakistan, we can say America, we can say India, we can say New Zealand, we can say Brazil, we can say Germany, France, Italy, etc., etc. All these are countries. Their name is specific name, proper noun. Simple name which is used for everyone or everything or every country or every place, that is a common noun. नेक्स्ट में आ जाइए बेटा. हमारे पास जो तीसरा टाइप है नाउन की, दैट इज मटेरियल नाउन. नाउ मटेरियल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था. मैं अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो दिस इज बोर्ड. उसके थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यू कैन सी अ वॉल. नाउ बोर्ड इज मेड ऑफ समथिंग, द वॉल इज मेड ऑफ समथिंग. all the things which are made of something are called मटीरियल नाउन. आपके पास हर चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं, दिस वॉच इट इज मेड ऑफ समथिंग. मीन आपके पास हर चीज जो किसी भी मटेरियल से बनी हुई है, या द चेयर विच ऑन विच आई एम सिटिंग और द टेबल विच आई एम यूजिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ऑन विच लैपटॉप इज बीइंग पुट ऑन, आपके पास ये सारी की सारी चीजें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन. थोड़ा और आगे चल लेते हैं. द अदर वन इज व्हिच आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास. आई जस्ट सेड दैट we'll have a recap and this one will continue our lecture. अब जो नेक्स्ट है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेटा हम प्रॉपर नाउन देख सकते हैं, कॉमन नाउन देख सकते हैं, मटेरियल नाउन देख सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन. लाइक if I say that I have sincerity for Pakistan, I have loyalty for Pakistan, you cannot see the loyalty or sincerity with me. These are the things which are abstract noun, which are not seen, but the thing which you can do is that you can actually if you cannot see them, you can observe in the human being. आप अपने लोगों में उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको जज कर सकते हैं, और जज करने के बाद यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लॉयल्टी, सिंसियरिटी, इवन लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन फ्यू केसेस. The next is collective noun. Collective noun simply collective, collection से बनता है. collection, collect से बनता है. collect mean to gather something, not together, it's together, इकट्ठा करना कुछ चीजों को. आपके पास बहुत सारे इंसान हो, वो irrespective to gender, either they are male or female. When we are combining them, all these human beings, either male, whether female, whether boys, whether girls, whether they are children or young or old, उनके लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है, दैट इज सिंपल, एंड दैट इज पीपल. मैंने लास्ट क्लास में एक चीज कही थी, अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो आपको पाकिस्तान टीम बोलने के लिए यू डोंट नीड टू से बाबर, असद, आसिफ एंड अदर ऑल पीपल. आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, एक सिंपल सी बात है, उसके लिए पूरी टीम के लिए एक टीम यूज कर लेंगे. अभी एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा,
Army, yes, army is a collective noun. Another can be jury. इसके अलावा आपके पास अगर बहुत सारे फूल होंगे तो उनको आप कहेंगे बंच ऑफ फ्लावर. बंच, बंच इज अ कलेक्टिव नाउन. आपके पास बहुत सारे शीप होंगे. शीप मीन जो आपके भेड़ बकरियां आप यूज कर लो उनको. आपके पास बहुत सारे शीप होंगे, उनके लिए भी आप क्या यूज करते हो? हर्ड. एनदर स्टूडेंट हैज रिटन क्राउड. यस, इफ देयर आर मेनी पीपल इन अ क्राउड के लिए दूसरा वर्ड भी ले लीजिए. अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि आपके पास हम स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी पे बात करेंगे. यहाँ पे किसी ने वर्ड लिखा है क्राउड. क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन आप क्राउड के अलावा एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं. क्राउड के अलावा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एंड दैट वर्ड इज मॉब. एम ओ बी, मॉब. एम ओ बी, एम मदर, ओ अदर, बी बॉय, मॉब. अब आ जाइए तीसरा, जो पांचवा पेयर ऑफ नाउन था, जो कि मैंने आप लोगों की क्लास में लास्ट टाइम बताया था कि आमतौर पर वो पांचवा पेयर नाउन ना तो आपको बुक्स में मिलता है, ना टीचर से पढ़ाया होता है, और ना हम आमतौर पर उसको यूज कर रहे होते हैं. लेकिन हम डेली यूज में चाहते ना चाहते, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम यूज कर रहे होते हैं. आप अपने नजर दौड़ा के देखिए, आप जहाँ पे बैठे हैं, जिस भी कमरे में बैठे हैं, दीवार पे एक घड़ी लगी होगी. उस घड़ी को आप इंग्लिश में कहते हैं वॉल क्लॉक. Now, you all are familiar that wall is a noun and clock is also a noun. Yeah, pair noun. Someone just reminded me that this was called pair noun. Yes, of course, it is called pair noun. I was just giving examples of pair noun like wall clock, wrist watch. जो हाथ पे घड़ी बांधते हैं उसको आप घड़ी कहते हैं उर्दू में, लेकिन in English the name of that घड़ी is wrist watch. आप घर में जो टेबल होती है उसके ऊपर जो कपड़ा बिछा रहे होते हैं, यू से यू नेम इट एज टेबल क्लॉथ. इसके अलावा आपके घर में जो पंखा है, जो छत से लटक के नीचे की तरफ आपको हवा दे रहा है, दिस इज नॉट पंखा, दिस इज नॉट फैन. द नेम ऑफ दैट फैन इज, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फैन इज? छत वाला जो पंखा होता है. None there who can answer me? Let me see. It's fan, it's ceiling fan. Yes, two of the students said ceiling fan. It's yeah, of course, it's ceiling fan. जो छत से लटका हुआ पंखा होता है. छत जो होती है, अगेन एक और चीज आपको सिखा देते हैं आज. आपके पास छत, उर्दू में हमारे पास एक ही वर्ड है, बट इन इंग्लिश छत के दो लफ्ज होते हैं. एक जो नीचे वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड सीलिंग, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है होता है दैट इज कॉल्ड रूफ. दैट इज नॉट सीलिंग. और दी अंडरनीथ वाला जो है जिससे पंखा लटक रहा होता है, वो रूफ नहीं होता, वो सीलिंग होता है. सो आपके पास पेयर ऑफ, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पेयर ऑफ वर्ड, क्राउड की जगह आप मॉब यूज कर सकते हैं. मॉब का मतलब भी होता है बहुत सारे लोगों का इकट्ठे हो जाना. आप पीपल यूज कर सकते हैं. 6-7 जज बैठे हैं. आप में से कुछ बच्चे होंगे जो कभी ना कभी किसी पार्टिसिपेट करने गए होंगे, किसी बैच में, किसी तकरीर में, किसी डिबेट में, किसी मिली नगमा गाने में, कुछ कुछ ना कुछ करने में गए होंगे. जब आप इन चीज़ों के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कंपटीशन होता है तो उसके लिए कुछ जजेस बैठे होते हैं. उन जजेस का आप अकेले अकेले नहीं कहोगे जज दिस, जज वो, जज ये, जज दैट, दिस दैट. You just need to say one word, and that is jury. That is jury. Jury is a collective noun as well. पेयर वर्ड मैंने आपको बता दिया, कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बता दिया. और इसके बाद हम चलते हैं जी नाउन से आगे. अगर किसी ने कुछ यहाँ पे पूछना है तो यू कैन जस्ट send your question in chat, or you can raise your hand. I can ask you the questions. नाउन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा. I guess no questions. So we'll move further. And to move further, we have got the next part of speech, and that part of speech is called pronoun. Now, what pronoun is? हाँ जी, प्रोनाउन क्या है, कोई बताएगा?
Yes, these are the examples. He, she, it are the examples. Can anyone tell me the definition of pronoun? Qualifies a noun, replaces a noun, right? Which is used instead of a noun. Good. So you have got the basic knowledge. Pronoun is a word which is used in place of a noun, or pronoun is a word which replaces a noun, or pronoun is a word which is used instead of a noun. आप जितना कुछ कह दें वो सब ठीक है. अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ नहीं आया. बेटा वो चीज जो कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी हो जो नजर ना आ रही हो, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं. लाइक अगर मैं कहता हूँ आई एम हैविंग सिंसियरिटी फॉर माई कंट्री, और मैं कहता हूँ आई एम हैविंग लॉयल्टी फॉर माई फैमिली, क्या सिंसियरिटी देखी जा सकती है कि मैं कितना सिंसियर हूँ अपने मुल्क के साथ? Can you see the loyalty in any of the teacher or any person? You cannot. Actually, you just can observe that. आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो. आप अगर ये कहो, हाँ मैं अगर कहता हूँ कि आई एम हैविंग लव फॉर पाकिस्तान, हाउ मच लव आई डू हैव, मतलब 2 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, 12 किलो प्यार, मीन दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन फ्यू ऑफ द केसेस. अब हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. अ वर्ड विच यू प्रोनाउन पे थे हम लोग. मैंने किसी ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा था तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप एवरीवन हैड अ लिटिल बिट ऑफ रीकैप. किसी को अगर कोई चीज़ मिस थी तो वो आई होप समझ आ गई होगी. Pronoun is a word which is used in place of a noun, और pronoun is a word which replaces a noun. हमारी बात हो गई थी. आपके पास बेटा जो pronoun होता है, it is having, again it is having kinds and cases. हम इस पे बाद में बात करते हैं. सबसे पहले दो चीजें देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी आई एंड बी. I and we basically are the persons. Then we have got he, she, and it. These are the person as well, singular. You is a person, but it is singular as well as plural. अब भाई they is person, but it is only plural. Now अगर आप वापस जाते हैं I and we are called first person. आप लोग जब से पढ़ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं टीचर बताते होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. Now first person, second person, third person are basically subjects. First person, second person, and third person basically are the subjects. I and we. I mean मैं mean singular. We mean singular. कहीं आप plural बना देते हो. आप लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, including me, first of all will be taking care of us. Me, मैं ये वाले वर्ड आपने सुने होंगे. Me, मैं, मेरा, मुझे, ये आई होता है. We mean आप इसके बाद जो आपके एसोसिएटेड लोग होते हैं, आपके जो 7 लोग होते हैं, उनकी फिक्र कर रहे होते हैं, उनमें से वी हो जाते हैं वो सारे के सारे. उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ मैंने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आपके पास जो शेयर हो रहा है वो ही शी इट है. लेकिन आई गेस कि आपके पास जो दूसरा पर्सन जिसकी आपको माइन इज ऑल्सो, हम आते हैं बेटा माइन, किसी ने कहा है माइन इज ऑल्सो, बट माइन, हाउ माइन इज यूज, हम इस पे बाद में बात करते हैं. यू इज सेकंड पर्सन. आप लोगों को कर्सर शायद नजर आ रहा होगा. यू इज सेकंड पर्सन, राइट. सेकंड पर आई वी के बाद आपको दूसरा कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है जिससे आप बात करें. इस वक्त आप लोग मौजूद हैं, जिस भी जगह मौजूद है, आप यू है, सेकंड पर्सन है. स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, द लिसनर इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन. सपोज आप में से कोई बात करता है और मैं सुनता हूँ या दूसरे लोग सुनते हैं, तो यू विल बिकम फर्स्ट पर्सन और बाकी सब हो जाएंगे सेकंड पर्सन. हम इस पर तफसीलन बात करेंगे जब हम टेंसेस करेंगे. अभी मैं शॉर्टली चंद चीजें बता देता हूँ. थर्ड पर्सन सिंगुलर पर आ जाइए. थर्ड पर्सन सिंगुलर्स जो होते हैं, ही शी इट होता है या कोई नाम होता है जो प्रॉपर नाउन आमतौर पर होता है. अब ही शी इट जो है वो आपके पास प्रॉपर नाउन है.
ये सिंगुलर होते हैं हमेशा, ही शी और इट, लेकिन इनका प्लूरल हो सकता है, जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यू इज सिंगुलर बट यू कैन बी प्लूरल। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपसे किसी भी एक बच्चे से कहता हूँ यू डू इट, आप शायद समझेंगे कि सिंगुलर के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह ये कह सकता हूँ कि यू डू इट, इसका मतलब है सारे के सारे करें। मीन यू कैन बी सिंगुलर, यू कैन बी प्लूरल, हम आगे बात करते हैं, समझ आ जाएगी मजीद। अगर आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं, आपके पास जो शेयर हो रही है उसमें मैंने 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन यूज किए हैं। केसेस का मतलब काइंड्स नहीं है, याद रखिएगा। जब आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं तो वो 5 काइंड है, उसको अगर एक और मिला लें तो 6 काइंड्स होती हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। आपके पास सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन का केस होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव, सेकंड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और थर्ड इज कॉल्ड पोजेसिव। Now, what is nominative? In nominative case, the, the doer of an action is subject. The doer of an action is subject, like I, we, he, she, it, you, or they. Objective case में क्या है? The subject receives the action. Subject receives the action, like I into me, we into us, he into him, she into her, it into it, you into you, they into them. Now they are the receivers. आप लोगों ने एक्टिव पैसिव एक क्लास तक शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आप जब एक्टिव वर्ड यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमने एक सेंटेंस लिया, और सेंटेंस हमने क्या ले लिया, आई ईट फूड। आई ईट फूड हमने ले लिया, आई यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है। इसका हम पोजेसिव सॉरी पैसिव वाइज बनाते हैं तो फूड इज ईटन बाय मी। नाउ आई चेंज इनटू मी, आई चेंज इनटू मी, वी स्पीक इंग्लिश। वी सब्जेक्ट है यहाँ पे, नॉमिनेटिव केस है, लेकिन उसको आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करना शुरू करेंगे तो आप कहोगे इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस, इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। नाउ आई इनटू मी, वी इनटू अस, ही इनटू हिम, शी इनटू हर, इट इनटू इट, you into you, they into them. These are the objective cases. थर्ड वन, आप में से सारे बच्चे आई होप कि उनको पता होगा पोजेसिव क्या होता है। पोजेसिव को आप थोड़ा सा आसान समझने के लिए देख लीजिए, पोजेशन शो करना। पोजेशन मीन कब्जा, कब्जा मीन किसी चीज की ओननेस, मलकियत शो करना, ये मेरा है। When we talk about possession or when we talk about possessive case, I change into my or mine, we change into our, he changed to his, she into her, it into its, you into your, they into their. Now my, mine, our, his, her, its, your, their, आप इनको जुमलों में जब इस्तेमाल करोगे, सेंटेंसेस में जब इस्तेमाल करोगे, फिर फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट में किया वी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पोकन बाय अस। आप ये कह सकते हो इंग्लिश इज आवर मदर टंग, मे बी कुछ लोगों की हो, इंग्लिश इज आवर मदर टंग। नाउ आर, अब बेटा किसी ने पूछा है कि ये कौन सी बुक में लिखवाया है, मैंने अभी तक आप लोग कुछ नहीं लिखवाया, मुझे नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछ रहे हो, दोबारा अगर पूछ लेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। पोजेसिव केस है जो कि माय, माइन, आर, हिज, हर, इट्स, योर, देयर। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक से मैंने लिया है, तो बेटा ये मैंने बुक से नहीं लिया, ऑब्वियसली ये मेरी अपनी ही चीजें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास चौथी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, या फोर्थ वन जो लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट अ केस, माइंड यू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ डिफरेंट प्रोनाउन, एक अलग प्रोनाउन होता है। इसमें क्या होगा कि आपके पास माई चेंज इनटू माई सेल्फ, आर चेंज इनटू आर सेल्व्स। रिमेंबर सेल्फ, आप अगर माई पढ़ेंगे तो माई सेल्फ होगा, आर पढ़ेंगे तो आर सेल्व्स होगा। उसकी रीजन ये है कि माई इज सिंगुलर बट आर इज प्लूरल। आप हिज पढ़ेंगे तो हिज के साथ हिमसेल्फ हो जाएगा, हिज सेल्फ नहीं होगा। नेक्स्ट हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों हो सकता है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ और किसी एक बच्चे से कहता हूँ कि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, योर सेल्फ, और मैं आप सबसे कहता हूं कि यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, मतलब वो सबके लिए कहा जा रहा है कि आप सब ने करना है, खुद से करना है। आखिरी बात जो है वो दे है, दे चेंज इनटू देम, और आपके पास पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा कि देम सेल्फ हो जाएगा।
अब बेटा एक क्वेश्चन आया है, किसी ने पूछा है कि ये आपके पास योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा। बेटा ये योर सेल्फ भी होगा, योर सेल्फ भी होगा। आप अगर किसी एक के लिए बात कर रहे हैं तो वो सेल्फ हो जाएगा, एक से ज्यादा के लिए बात करेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। यू हैव टू सी हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग टू। मैं दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई एम गिविंग यू एन I am giving you an assignment. You have to do it yourself. जब मैं सेल्फ कहता हूँ इसका मतलब मैं किसी एक बच्चे से बात कर रहा हूँ। मैं इसको दोबारा चेंज करके जुमला बोलता हूँ कि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम, आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट, यू हैव टू डू इट योरसेल्व्स। जब मैं सेल्व्स कहता हूँ तो वो सिंगुलर नहीं, दो से ज्यादा से बात हो जाता है। बेटा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट सेंड मी अ क्वेश्चन, आई कैन आंसर यू। If there is a question, please send me. I'll answer you, then we'll move. Right, I guess there is no question at all. So because I didn't get anything in the chat box, so we are going to continue with the new thing. The third thing in parts of speech is verb. Now, what is verb? We discussed it in the last class that verb is an action, and any sentence cannot be a sentence unless there is a verb. Verb काम होता है, काम के बगैर sentence नहीं हो सकता। जैसा कि आपके पास एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, कोई भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग, टीचिंग इज अ वर्ब। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। आई एम ड्राइविंग, मैं कार चला रहा हूँ, ड्राइव। आई एम सिंगिंग, सिंग, आपके पास गाना वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप कोई चीज रीड कर रहे हैं, रीडिंग। आप टीवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। अब ये सारे के सारे जो है वो आपके पास वर्ब होते हैं। Now there are two verbs, two sorts of verb or two kinds of verb. Basically इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं दो चीजें आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप सीख सको। Number one, regular verb, and the second one is irregular verb. Now what is regular and what is irregular? बेटा आपने कुछ सेंटेंसेस देखे होंगे और वर्ब की फॉर्म्स आपको टीचर्स ने कभी पढ़ाई होंगी, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। दरअसल इंग्लिश ग्रामर में कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती और ना कोई थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म बेसिकली इज अ प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेसिकली इज अ पास्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेसिकली इज अ पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम अगर आपको बताते हैं या किसी टीचर ने बताया है तो उनका मेन मकसद, हमारा मेन मकसद सिर्फ एक होता है कि आपको समझ आ सके। उसकी जो सही डेफिनेशन है, जो सही यूज है, वो यही है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अब आ जाए हाउ टू रिकॉग्नाइज द रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब बेटा हम आमतौर पर यूज करते हैं उन सेंटेंसेस, उन वर्ब को समझते हैं जिनका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो डी और ईडी के इजाफे से हो जाए। लाइक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ये आपके पास क्या हो गया, रेगुलर वर्ब। अब इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स आमतौर पर, इरेगुलर वर्ब्स हम उनको कहते हैं जिनके जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, जिसको आप पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज किए गए हों। लाइक डिफरेंट तरीके से कैसे यूज किए गए हों जी? हमने अभी डी और ईडी सीखा जो कि रेगुलर वर्ब के लिए हो गया। इरेगुलर वर्ब कैसे हो सकते हैं? आपके पास एक वर्ड है सिंग। Can anyone tell me the third and second form of sing? Sing, come, दो बता रहा हूँ, आप उसको भेज सकते हैं मुझे। Sing, come, speak, put।
Yeah, sing, sang, sung, or come. Anyone who is coming, come, come, came. It's come, came, come, beta. Sing. Sing, sang, sung. Good. Speak. Drive, drove, driven. Good. You people are coming with new things. Good. कुछ और? Speak, spoke, spoken. Spelling सही करने पड़ेंगे spoken के. SPOKEN. Spoken. Right. Anything else? Any other word which you are just having in your mind, which is having the different? चलें put को ले लेते हैं. Put, cut, shut. How to have the second and third form of put, shut, and cut? Gee, anyone coming up with cut, put, shut? Put or shut का second form, third form, past and past participle. Anyone? चलें ये ठीक है, no problem at all. Put, cut, cut, shut. तीनों सेम रहेंगे. अब आ जाइए, मैं ये क्यों बता रहा था. इरेगुलर वर्ब. बेटा आप लोगों ने देखा, जब आपके पास इरेगुलर वर्ब के कम से कम 3 तरीके होते हैं. नंबर 1, आपके पास तीनों वर्ड चेंज हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. लाइक आपके पास क्या हो सकता है, आपने स्पीक, स्पोक, स्पोकन कहा, तीनों के स्पेलिंग चेंज हो गए. आपने सिंग, सैंग, संग कहा, तीनों के स्पेलिंग चेंज हो गए. गो, वेंट, गॉन, तीनों के स्पेलिंग चेंज हो गए. ना दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें 2 के स्पेलिंग चेंज होते हैं या एक के स्पेलिंग 2 सेम रहते हैं. लाइक कम, केम, कम, कम, केम, कम पहला भी है, कम आखिरी भी है, केम बीच में आ गया. तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज टुक, टेक, टुक, टेकन. ये भी आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है. थर्ड कैटेगरी में हम आ चुके हैं बेटा. आपके पास कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म्स एक ही हैं. जैसे आपने यकीनन पढ़ा होगा, यकीनन देखा होगा, आपके पास एक वर्ड होता है पुट, जिसका सेकंड फॉर्म या जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं और पास्ट कहते हैं, तीनों के तीनों पुट होता है. कट होता है. शट होता है. उनको हम इरेगुलर वर्ब का 3 कैटेगरी में लेकर आते हैं. यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? फिर आगे चलें. Gee, anyone having question? Right, we'll continue with the next speech or next part of speech. And the next part of speech we are having is, याद है किसी को? इरेगुलर की सेकंड कैटेगरी में बेटा 2 वर्ड चेंज होते हैं, एक सेम होता है. मतलब एक सिंगल होता है, 2 सेम होते हैं. जैसे कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम. हम आ गए हैं जी एडवर्ब पर. अगर याद हो, मैंने एडवर्ब की डेफिनेशन आपको जरा सी चेंज करके बताई थी. हम लोग बेटा आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है. रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है
यानी कि पास्ट प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो ईडी या डी के साथ होती है, जैसे टॉक टॉक्ड टॉक्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन यही है और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आपके पास एडवर्ब, मैंने अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मंडे के दिन जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था, आप लोग बहुत लेट आ रहे हैं भाई, कुछ बच्चे अभी तक एडमिट हो रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं लूंगा आप लोगों को। ओके ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम बेटा हो सकती है। खैर आई जस्ट टोल्ड यू एडवर्ब, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एडवर्ब एडिंग समथिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, एडिंग समथिंग सॉरी एडवर्ब एडिंग समथिंग टू द वर्ब इज कॉल्ड एन adverb, adding something to adjective, adding something to another adverb is also called an adverb। हमने जो जिंदगी में आप लोगों को सिखाया है वो ये सिखाया है कि एडवर्ब बेसिकली इज अ वर्ड विच इज आल्सो विच इज ऑलवेज एंडिंग एट एल वाई। ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ सर्टन केसेस में ऐसा ही होता है, जैसे वीकली, क्विकली, स्विफ्टली, क्लेवरली, बोल्डली, ये सारे के सारे आपके पास एडवर्ब हैं। लेकिन इसके अलावा देर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। उन 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, एडवर्ब प्लेस हो सकता है, एडवर्ब मैनर हो सकता है, एडवर्ब क्वालिटी हो सकता है, एडवर्ब क्वांटिटी हो सकता है, एडवर्ब डिग्री हो सकता है, एडवर्ब क्वेश्चन हो सकता है, एडवर्ब ऑफ रिस्पॉन्स हो सकता है, मीन जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं या नेगेशन कहते हैं। अब ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, बट हाउ टू रिकग्नाइज एन एडवर्ब, एडवर्ब को रिकग्नाइज कैसे करें, पहचाने कैसे कि ये एडवर्ब है। सपोज यू आर हैविंग अ सेंटेंस कि वी आर इन द क्लास, वी आर इन द क्लास, और आपके पास दूसरा सेंटेंस है वी आर इन, वी आर इन। नाउ इन आप लोगों को पता है इज अ प्रेपोजिशन, इन इज अ प्रेपोजिशन। लेकिन क्या कर सकते हैं आप अगर इस सेंटेंस को दोबारा दोनों को पढ़ें तो पहला सेंटेंस था वी आर इन द क्लास और दूसरा सेंटेंस था वी आर इन। when we talk about we are in the class is an object। आपके पास अगर कोई प्रपोजिशन होता है जिसके आखिर में ऑब्जेक्ट लिखी होती है, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रपोजिशन है जिसपे सेंटेंस आपका एंड हो जाता है तो दैट इज नॉट प्रपोजिशन, दरअसल दैट इज एन एडवर्ब। लाइक आपके पास क्या हो सकता है कि वी आर इन, हम अंदर हैं, दे आर आउट, वो बाहर है, आउट यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं एडवर्ब होगा। दे आर आउट ऑफ द स्कूल, फिर आपके पास एडवर्ब जो है वो प्रपोजिशन कहलाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन, शुड बी मूव फॉरवर्ड। बेटा नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एक ऐसा लफ्ज जो कि मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, तारीफ बताता है, मजीद बताता है, एक्सप्लेन करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ 3 तरह के एडजेक्टिव्स हम डिस्कस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड नंबर। क्वालिटेटिव जो डेफिनेशन है वही सेम है। क्वालिटेटिव मीन आप क्वालिटी बयान करते हैं, लाइक गुड, ब्यूटीफुल, बैड एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव और नंबर कभी कभी लगता है कि सेम ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव जब आप बात करते हैं तो वो मिकदार होती है, और जब नंबर की बात करते हैं वो तादाद होती है। लाइक वी कैन से देयर आर मेनी फ्लावर्स in the garden, we can say there are some students in the class, we can say there are many trees in the garden, you can say that there are many leaves on the tree, you can say that there are many stars in the sky। अब ये सारे के सारे मैनी हो गया, सम हो गया, क्वांटिटेटिव कहलाते हैं बिकॉज यू कैन नॉट काउंट देम। नंबर में क्या हो सकता है, आप कह सकते हो आई हैव गॉट 50 रुपीज इन माय पॉकेट, आई एम हैविंग 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, आई एम हैविंग 19 ड्रेसेस, प्रोबेबली ये सारी चीजें हो सकती हैं। जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो वहां पे हम नंबर कहते हैं, जहाँ काउंट नहीं किया जा सकता है वहां पे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो?
एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए कि क्वांटिटेटिव कैन बी नंबर। आप क्वांटिटेटिव को नंबर में चेंज कर सकते हैं और नंबर को क्वांटिटेटिव में चेंज कर सकते हैं। हाउ? Suppose I am going through one of the class and I see that there are some students sitting in the class. There are some students, quantitative हो गया। I went into the class, I saw that there are 14 students sitting in the class। तो जो क्वांटिटेटिव था वो नंबर में चेंज हो गया, क्योंकि वो पहले जो थे वो मिकदार थे और अब क्या हो गए, तादाद हो गए। पहले वो गिने नहीं जा रहे थे, अब गिने जा सकते हैं। अब हम मजीद आगे चलते हैं प्रेपोजिशन। बेटा आई टोल्ड यू पीपल दैट प्रेपोजिशन बेसिकली आप इसको तोड़ लीजिए, पोजीशन से पहले आने वाला लफ्ज प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन आप कह लीजिए इसको, प्रेपोजिशन जिसको हम कह रहे हैं। आपके पास preposition is a word which tells you the place of some noun or place of something। आपके पास तीन तरह के prepositions हो सकते हैं, kinds हो सकती हैं, basic kind, time, place और situation। अब दोबारा देख लीजिए, दोबारा समझ लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था हम preposition को समझते हैं कि बहुत आसान सा टॉपिक है, बट इट इज नॉट बेसिकली एज इजी एज वी थिंक। प्रेपोजिशन की जब बात करते हो आप लोग, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा था हम कुर्सी में बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में जब भी इसको चेंज करते हो आप हमेशा कहते हो कि वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। इट्स नॉट ऑन द चेयर ऑलवेज। उसकी रीजन सिंपल ये है कि आपके पास जब कुर्सी बाजुओं वाली होगी तो इन द चेयर होगा, और अगर बाजुओं के बगैर होगी तो ऑन द चेयर होगा। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। Now, preposition of time, preposition of place, preposition of situation. Time. I have a meeting with my colleagues at 9 p.m. मैं 9 p.m. जब कह रहा हूँ वो टाइम है। I have a meeting with my colleagues at। At is a preposition। दूसरा एक ले लेते हैं कि she is knocking at the door। दरवाजे पर दस्तक देती है, दरवाजे को खटखटाती है। She is knocking at the door। Knocking mean जब वो खड़ी है, जगह पर है, तो it is place। The third is situation। आप दरवाजे से जब क्रॉस करके अंदर आते हो तो you are not coming from the door, you are not coming by the door, basically you are coming through the door। अब वो जो through है, that basically is a situation। Through is थ्रू इज अ सिचुएशन। आप क्या कह सकते हैं कि आई एम कमिंग थ्रू द डोर, और टीचर केम थ्रू द डोर। प्रेपोजिशन में किसी को कोई क्वेश्चन? If you have got a question, you can ask me, please. You can just chat it. I'll answer you. सिचुएशन में प्रॉब्लम है जी एक स्टूडेंट को। आप घर में आपकी अगर खिड़की है, शीशे से बाहर से कोई पत्थर आके गिरता है घर में, तो वो पत्थर खिड़की से आ रहा है उर्दू में, बट इन इंग्लिश इट इज कमिंग थ्रू। वो सिचुएशन है, एक जगह बनी हुई है जिसके अंदर से यू क्रॉस इट ओवर। आप अगर किसी पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं तो यू गो थ्रू द ब्रिज। आप ऑन द ब्रिज कह सकते हैं, बट लेकिन आप यू आर गोइंग थ्रू दैट ब्रिज। आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी। सिचुएशन इसको कहते हैं। आई गेस आई शुड वाइंड अप। I'm winding it up here. We'll continue with it inshallah on Monday। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपको है, पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। बेटा कुछ पूछना है किसी ने? No homework today because you people will be having Independence Day, so you are having Azadi। Celebrate your Independence Day। Be happy, be good with yourself, be good with your family, be good with your country, be good Muslims, be good citizens। That would be basically the homework। And
Wish all of you happy Independence Day tomorrow. Abibi, I am on waiting. If anything you would like to ask, you can ask me, please. Otherwise, I'll end the meeting in a while, and we'll be having another class, inshallah, on coming Monday. No class at all? No question at all? Okay, God bless you. Take care.